friends, and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain, and Vedic Maths Mastery is my channel name. So, in the today's video, we basically learn how LCM of numbers basically works. As I told you, as I promised you in the last video, that in the next video I'll teach you LCM. Due to the long video, the last video was too long, so I decided to make another video on the concept of LCM. So, friends and students, if you are preparing for competitive exams, so you need to learn SCF and LCM, how basically it works. It's really a very important topic for the competitive exam, and it will give you a lots of help for solving your competitive exams questions. So, in the today's video, I'll just teach you basically how the LCM works and so many questions and examples I'll just give you. But in the next video, I'll definitely teach you some more examples, which questions already has come in your competitive exam in last to last years. So those examples will really help you to solve the concept of LCM and SCF. So in the last video, as I told you the SCF and gave you so many examples of related to SCF. And if you haven't seen my SCF video, in which I basically cleared the concept of SCF, so just check out. And in the today's, I'll just give you examples of LCM and basically tell you how it really works. So don't miss out any part, otherwise you will get definitely lose something because it's a really important topic. And in the middle of this section and last of the video, I'll definitely give you a very good examples of LCM. So just watch till end if you want. So just move on to some definition of SCF and LCM. I'll just give you a very short preview of SCF, in which I already told in my last video. So basically SCF, basically how it works. So prime numbers common to all the given numbers as a product of prime factors. See, जितने भी आपको कोई भी नंबर्स दिए हो उनकी जो भी पावर्स होती हैं, तो इतने सारे नंबर्स में पावर्स दी हुई हैं, तो हाउ कैन यू फाइंड द एचसीएफ? तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें एचसीएफ के अंदर, तो हमने सिंपल ये करना होता है कि जो भी आपके जितने भी पार्ट्स दिए हैं, जैसे 1 2 3 पार्ट दिए हैं, सिंपली आपको देखना ये है कि जो भी पावर बेसिस के साथ, बेसिस तो सेम होने चाहिए, तो उसकी जो भी पावर आपकी कॉमन जा रही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में तीनों में अगर लीस्ट जो भी आपके पास है, सबसे कम पावर का जो भी है, क्योंकि वो सबके पास होगा। ज्यादा पावर का एक ही के पास हो सकता है, दो के पास हो सकता है, थर्ड के पास नहीं हो सकता, तो इसलिए लीस्ट पावर जितनी होगी वो हम कॉमन लेते हैं एचसीएफ में। तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, यू जस्ट चेक आउट। नाउ जस्ट मूव ऑन टू एलसीएम। बेसिकली हाउ द एलसीएम वर्क्स। सी, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिखा प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। यहाँ कॉमन टू ऑल द गिवन नंबर्स था कि जो इतना कॉमन जा रहा है पार्ट कि जो सबके पास इजीली अवेलेबल हो, कॉमन आ गया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिया हुआ है, तीनों आपको टर्म्स दी हुई है, तीनों टर्म्स में जितनी भी बेसिस के साथ जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे बेसिस 2 2 2 अगर है और एक के पास 3, एक के पास 2, एक के पास 4 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, तो वही बेसिकली टर्म आप एज अ हाईएस्ट पावर आप निकालेंगे एलसीएम के अंदर। ठीक है, तो आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, सो इट विल गिव यू अ लॉट, मतलब क्लियर यू, सो हाउ द एलसीएम क्वेश्चन बेसिकली वर्क। सी, move on to next window and I'll just give you example of LCM. So friends, this is the question. As you can see here, find the LCM of this question. See, in this question, as I told you that you have to product of term containing the highest power. So see, as you can see here, there is a 2 power 2, there is a 2 power 3, there is a 2. So highest power is 2 की power 3. There is 3 की power 2, there is 3, there is 3. So there is a highest power is 3 की power 2. And in the there is a 5, there is a 5 2. So in the highest there is a 5 2. So I will take this. And in the 7 7 and 7 की power 2, and there is 7, so 7 2 is also highest, so I'll take this. And 11, so I'll take the product of term containing the highest power of 2 3 5 7 11. तो मैंने आपका
जो कंटेनिंग ऑफ हाईएस्ट पावर 2 3 5 7 11 का लिया है वो आएगा आपका एलसीएम 2 की पावर 3 एंड देन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11. So basically product of term containing the highest power of 2 3 5 7 11 क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास में जो है वो प्रोडक्ट मेरे पास में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास में 2 3 5 7 11 था। तो इसका जो एलसीएम मेरे पास में यहाँ निकल करके आया है वो ये आया है हाईएस्ट पावर का। तो मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 8 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25 7 7 ज़ा 49 एंड 11। नाउ दिस क्वेश्चन मैं आपको वैदिक मैथ्स का बता देती हूँ। अगर आप इसको वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो यू कैन टेक 9 हियर एंड देन ऐड दीज टू डिजिट्स 9 प्लस 4 आपका हो जाएगा 13 13 का 3 इधर और 1 ओवर कैरी ओवर हो जाएगा 4 आपका इधर आता है 4 में प्लस 1 कर दोगे 5। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर 539 ऑलरेडी एक टर्म निकल चुका है। ठीक है 25 से रिलेटेड भी मैंने करा रखा है और मैंने आपको 8 9 से अगर आप करोगे 72 इंटू 25 इंटू 539। अगर आप चाहो तो इसको आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हो जिसकी वैदिक मैथ्स में मैंने वीडियो बना रखी है। तो यू कैन चेक आउट अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 970200 विल बी दी आंसर। तो दिस इज द करेक्ट एलसीएम। ये आपका एलसीएम यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो क्वेश्चन आपने जो है ना वैदिक मैथ से सॉल्व करा। एक ये आपका 11 सीरीज वाला जो था जिसमें मैंने आपको सिंगल 3 11 और 4 11 और 11 की सीरीज पूरी करा चुकी हूँ। और एक आपका क्रिस क्रॉस जिसमें मैं आपको 3 या 4 लेवल तक की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा चुकी हूँ। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इट विल रियली गिव यू अ हेल्प और सेव टाइमिंग्स गिव एक्यूरेसी एंड स्पीड भी मेंटेन करता है। बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है तो जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम जो है ना एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे एलसीएम में यूज होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी यूज कर रहा है और एक होता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से जो एलसीएम का क्वेश्चन है वो हम मूव टू नेक्स्ट विंडो एंड जस्ट check out the next question. Now friends, this is the next question. As you can see here, find the LCM of 15, 18, 24, 27, 56. So this is the basically shortcut method in by which basically we find the LCM. Okay. So in the LCM, as you can see here, these all basically are factors and what we have to do is we have to basically divide फ्रॉम विच टेबल बाय बेसिकली आप देख सकते हो कि कोई एक ऐसा नंबर कोई एक ऐसा टेबल जिसमें ये सारे ही नंबर्स या तो आते हों या फिर आपके दो या तीन नंबर्स आते हो या एक नंबर आता हो जिससे डिविजिबल हो। बट मोस्टली हम ये देखते हैं कि दो या तीन नंबर अगर किसी एक टेबल में पहले आते हैं तो हम कोशिश करके उस टेबल से डिवाइड करते हैं। नाउ यू कैन सी 18 24 एंड 56 ये टू से डिविजिबल है। ठीक है ये टू से डिविजिबल है और 15 18 24 27 ये चारों नंबर ये थ्री से भी डिविजिबल है क्योंकि 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11 आता है। 11 नंबर जो है वो थ्री की टेबल में नहीं आता अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल। एज आई ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन द डिविजिबिलिटी रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन चेक आउट। तो उसमें 56 नहीं आता थ्री की टेबल में तो इसको थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे टू टू से ही डिवाइड होगा। तो आप चाहो तो पहले थ्री नंबर ले सकते हो आप चाहो तो टू ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले थ्री ले लेती हूँ ताकि कई बार होता है कि बच्चों के माइंड में जैसे टू से नहीं करना तो टू से तो नॉर्मली सभी कर लेते हैं कि इवन नंबर हम टू से डिवाइड कर लेते हैं। बट मैं आपको एक ऐसा मतलब थ्री से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि माइंड में कई बार होता है कि क्वेरीज रह जाती है। अब आप कमेंट सेक्शन में देखते नहीं हो अपनी क्वेरीज। तो अगर आपके किसी के भी माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके दे रही हूँ क्योंकि टू से तो ऑलरेडी सभी कर देते हैं। ठीक है तो हम थ्री से ले लेते हैं। 3 5 सा 15। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा भी डाल सकते हो आप चाहो तो एक स्लैश भी लिख सकते हो। ओके So 3 5s are 15 and 3 6s are 18.
ओके एंड देन 3 8 24, 3 9 27, 56 नहीं आता तो आप इसको एज इट इज उतारते रहेंगे जब तक ये किसी भी टेबल में नहीं आता, या जो टेबल आप डिवाइड करें उसमें नहीं आता आप उसको एज इट इज उतारते रहेंगे, ठीक है। नाउ अगेन आई विल टेक 3, क्योंकि मैंने देखा 5 तो नहीं आता 3 की टेबल में, बट 3 2 ज़ा 6 एंड 8 भी नहीं आता, उसको भी एज इट इज लिखूंगी, एंड 3 3 ज़ा 9 एंड देन 56। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मैं दोबारा से इसको चाहूँ तो 3 से ले सकती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम इसको दोबारा 3 ले सकते हैं, या फिर आप 3 को एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप 3 को दोबारा ले लेते हैं, या फिर आप 3 को चाहो ना तो नीचे एज इट इज उतार सकते हो। आपको उसी तरीके से मैं करके दिखा देती हूँ कि 3 एज इट इज उतारते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 की टेबल में 3 तो 1 पर ही आता है, तो नीचे बेसिकली 1 1 आने चाहिए सारे। अगर कोई नंबर एज इट इज सिंगल रहता है जो सिर्फ अपनी टेबल से ही जाता हो, तो उसको नंबर को हम ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे, वो सब क्वेरीज रहती है बच्चों की, तो वो ही क्वेश्चन मैं उसी पैटर्न से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि 3 की टेबल में 3 या 1 पर ही रहेगा तो उसको मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ। अब मैं ले लेती हूँ 2 नंबर। तो अब आप देख सकते हो 5 की टेबल में 5 5 पर ही जाएगा, 3 की टेबल में 3 3 पर ही जाएगा, तो उसको एज इट इज रहने देती हूँ। क्योंकि मैंने 2 लिया तो मुझे यहाँ पर इसको डिवाइड करना जरूरी है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 3 को एज इट इज रखूंगी और 2 की टेबल से ये चला जाएगा 28। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 4 की टेबल में 28 नंबर आता है, तो मैं सीधा डायरेक्ट 4 नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, 4 नंबर ले लेती हूँ। तो 5 एज इट इज लूंगी, 1 एज इट इज लूंगी, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर 4 आ रहा है तो मुझे 4 1 ज़ा 4 करना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर सिंगल डिजिट 4 होता और 4 से रिलेटेड कोई नंबर नहीं होता जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं फिर 4 ही रहने देती, जैसे मैंने 3 रहने दिया और 5 रहने दिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। तो 3 को एज इट इज रहने देंगे। नाउ आपको पता है 4 की टेबल में 28 आपका आता है, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 5 की टेबल में 5 5 पर आएगा, 3 की टेबल में 3 3 पर आएगा और 7 की टेबल में 7 7 पर आएगा। ये 3 नंबर आपके अलग है और ये 3 नंबर जो डिवाइड के लिए यूज हुए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही तरीके से ये क्वेश्चन को मैंने जिन बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज आती वो सारी क्वेरीज से रिलेटेड मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था, क्योंकि नॉर्मली आप 2 से रिलेटेड तो सब चीजों से अपने हिसाब से आप सॉल्व करते ही हैं। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सो जस्ट फाइंड आउट एलसीएम। सो द एलसीएम ऑफ 15 18 24 27 एंड 56। सो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको, अब आप देख सकते हो आपको मैंने बताया था एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 3 की पावर 3 बन रही है, ठीक है, और 2 की पावर एक ही है, 4 की पावर एक ही है, 5 की पावर एक ही है, 7 की पावर एक है, तो ये 7 अपने आप में हाईएस्ट है। 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 ले लेंगे, और 2 अपने आप में सिंगल है वो भी अपने आप में हाईएस्ट हो गया, 4 सिंगल है वो भी अपने आप में हाईएस्ट हो गया, 5 सिंगल है वो भी अपने आप में हाईएस्ट हो गया, और 7 सिंगल है वो भी अपने आप में हाईएस्ट है, और 3 की पावर 3 है तो वो अपने आप में हाईएस्ट है। अगर यहाँ पर 3 के अलावा 3 के साथ कुछ और नंबर्स होते, 2 के अलावा 2 के और कुछ नंबर्स होते, तो मैं उसमें हाईएस्ट देखती, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबको लेकर के चलना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा है, कैसे सॉल्व करा है, सिंपल पहले 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, और उसके बाद जो आपका यहाँ पर ये सिंगल डिजिट थी 5 3 और 7, तो मैं चाहूँ तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, काउंट करने की जरूरत ना पड़े, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 की पावर 3 होती है वो आपको पता ही है, 27 आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते चलो, तो आपका आंसर जो टोटल आएगा वो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। इजी वे में आप चाहो तो 4 5 से 20 कर लो, 3 की पावर 3 होता है 27, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 14, और फिर क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 7560 will be the answer. See how easily we get the answer. This is the LCM.
Okay, so we just move on to next one more question of LCM. So it will give you a more clarity how it works. Okay, so friends, this is the next question. As you can see, find the smallest number exactly divisible by each one of the numbers 12, 15, 20, and 27. Now, except 20, you can see 12, 15, and 27 basically divisible by 3. Okay, 3 की टेबल में आ रहा है. Otherwise, 20 will not come. 20, it is divisible by 2 or a 5. So I'll take 3. As I told you, I'll not take 2 because generally बच्चे 2 ही लेते हैं क्योंकि first number even है और 2 number smallest number है. 2 से divisibility यहाँ पर दिख रही है तो 2 से लेते हैं. But मैं आपको अलग तरीके से इसलिए करके दिखा रही ताकि जो क्वेरीज है वो बच्चों की स्टूडेंट्स की सॉल्व हो सके. So student mostly do divisible by 2 but I take 3. So I just divide it. See, 3 fours are 12 and 3 fives are 15. 20 will just put down as it is and 3 nines are 27. So now you can see 5 it's basically divisible by the table of 5. So as it is हम 5 को उतारते रहेंगे and now 2 4 is divisible by 2, 20 is also divisible by 2, so now I will just take 2. So 2 twos are 4 and 5 will take as it is, 2 ones are 2, 0 as it is and 9 will take as it is. Again we'll take 2 एंड टू वन ज़ा टू क्योंकि यहाँ पर टू की टेबल में 10 आता है तो आप चाहो तो 5 की टेबल भी ले सकते हो आप चाहो तो 2 की टेबल भी ले सकते हो इट्स अप टू यू बट मैंने 2 क्यों लिया मैं बता देती हूँ क्योंकि 5 की टेबल में 10 जो है वो 2 पर आता है तो 2 इसलिए पहले ले लेते हैं ताकि 2 का जो है ना वो कंप्लीट हो जाए तो 5 हम एज इट इज लेंगे नाउ अगेन 2 5 are 10 एंड 9 एज इट इज लेंगे नाउ यू कैन सी 5 की यहाँ पर दो डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 5 वन ज़ा 5 5 वन ज़ा 5 एंड 9 एज इट इज मैंने आपको अभी एक चीज ये बताई है कि क्या होता है कि जैसे सिंगल डिजिट बच गई आपकी ठीक है और एक ऐसा नंबर बचा है जो अपने आप अपनी टेबल से ही डिवाइड होता है जब सिंगल डिजिट बचती तो मैं उसको एज इट इज छोड़ देती क्योंकि वो फिर 5 की टेबल से ही जाना अपनी टेबल से तो यहाँ पर लेकिन दो 5 थे इसलिए मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया आप चाहो तो अपने तरीके से करोगे तब भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा ठीक है अब मैंने 9 को लीव कर दिया आप चाहते तो यहाँ स्टार्टिंग में भी 3 3 ज़ा 9 फिर 3 1 ज़ा 3 कर सकते थे सो नाउ आई जस्ट टेक LCM of see LCM of 12 15 20 and 27 so 3 into 2 into 2 into 5 and into 9 यहाँ के ये जो फोर नंबर्स थे इनको मल्टीप्लाई एंड देन दिस 9 ओके तो ये सारे नंबर मैंने यहाँ ले लिए एलसीएम में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टू टू सा फोर फोर थ्री सा आपका 12 होता है 12 इंटू फाइव करोगे नाइन फाइव सा 45 करके उसको मल्टीप्लाई कर लोगे सो 540 विल बी द आंसर Hope you like this video. Hope you understood the basic फंडा ऑफ एलसीएम कि एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका क्या है इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका फॉर्मूलेज होते हैं टू फॉर्मूलेज आई जस्ट गिव यू फॉर्मूलेज एंड टीच यू दी बेसिक एग्जांपल्स हाउ कैन वी इजीली सॉल्व दिस सो अगर आपको लगा हो कि वीडियो में आपको बहुत नॉलेजेबल है इट इज रियली फील दैट इट्स अ नॉलेजेबल वीडियो एंड द वे आई टीच आई इट्स रियली अंडरस्टैंडेबल टू यू so you can like it and subscribe my channel and till then um, for upcoming next video I'll just give you a Vedic maths video I'll make it next video of mine and it will give you a really very marvelous technique which I will start of Vedic maths, which will help you to easily multiply by any number. Like if you want to multiply nearest of hundreds place and want to multiply any number, so that technique will give you a lot of help, and it's really helping as you know that competitive exam as well. So just check out my upcoming next video of Vedic maths and